Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asana School and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 8, Maths Standard 10. Our lesson is how do organisms reproduce? How do organisms reproduce? And this is our fourth explanation video. This is our fourth explanation video. जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस 3 वीडियोस जो हमने आपको दिए थे इसमें हमने आपसे रिप्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंट, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन दिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 8.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो के चलते हुए हम सबसे पहले आपसे कुछ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट वेरी वेल अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म produce new organism of its own kind is known as the reproduction. Repeat once again. A process by which an organism produce new organism of its own kind is known as the reproduction. Reproduction, unlike other the life process, is not necessary to maintain the life of an individual organism. Reproduction involves creation of a DNA copy. Reproduction is linked to stability of population of the species. During the reproduction, variation formed are the basis of the evolution, and variation is useful for the survival of the species over the time. There are two types of reproduction exhibit organisms: a sexual reproduction and sexual reproduction. What is a asexual reproduction? When a single parent is involved in the formation of the new generation without the fusion of gametes, it is called asexual reproduction. I repeat once again. When a single parent is involved in the formation of new generation without the fusion of gametes, it is called asexual reproduction. There are so many types of asexual reproduction like fission, budding, spore fermentation, regeneration, fragmentation and vegetative progressions. In fission, there are two types of fissions: binary fissions, they exhibit in amoeba and leishmania, and multiple fusion, they exhibit plasmodium. In vegetative propagations, there are also two types of propagations: natural vegetative propagation and also artificial. The adventitious buds developing from the tuberous roots of the sweet potato, lip margin of the bryophyllum and normal bud size on the surface of the potato tuber is called the neutral vegetative propagations. And in artificial vegetation propagation, there are so many methods also: cutting, layering and grafting, etc. are the artificial method of the vegetative propagation. Advantages: all the plants produced are genetically similar to the parent plants. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव का ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है
कि इसकी हेल्प लेकर हम जेनेटिकली बेस पर सिमिलर प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर पेरेंट्स प्लांट्स। ओके, ये बात थी हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। इसे हम ब्रीफली या डिटेल्स में इसलिए स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि 30% रिडक्शन के चलते हुए जो कोविड-19 की हाल की परिस्थिति है, रिसेंट टाइम की जो कंडीशन है, उसको चलते हुए आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी ये डिसीजन लिया है कि आपका जो टोटल सिलेबस है उस सिलेबस में से 30% सिलेबस को रिड्यूस करना है। और इस 30% सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चैप्टर नंबर 8 में से आर्टिकल 8.2 जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर स्टडी करवाता है, इसे कैंसल आउट किया गया है। लेकिन हमारी स्टडी को लिंक करने के लिए हमने कुछ बेसिक बातें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपके साथ शेयर की। अब हम चलते हैं हमारे कंटिन्यू टॉपिक की तरफ जो इस सिलेबस का एक हिस्सा है, और वो है 8.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। What is called the sexual reproduction? A mode of production in which both sexes, a mode of production in which both the sexes, male and female, are involved to produce a new generation is known as the sexual reproduction. कहने का मतलब यह है कि ये इस तरह का उत्पादन, इस तरीके का प्रोडक्शन है जिसमें बौद्ध सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म हिस्सा लेते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ये दोनों इन्वॉल्व होकर इस प्रोसेस थ्रू न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो आई रिपीट वंस अगेन, अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, are involved to produce new generation is known as the sexual reproduction. Germ cells have half the number of the chromosomes and the half the amount of DNA due to the meiosis when both male and female gametes are fused. There is re-establishment of the number of chromosomes and the DNA contained in the new generation. This may be similar to their parents or may be combined to some extent. तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जब सेल्स हैव द हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के पास, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के पास मेल एंड फीमेल दोनों के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। तो germ cells have half the number of the chromosomes and half the amount of DNA due to the meiosis. Meiosis है ये एक काइंड ऑफ सेल प्रोडक्शन, सेल डिवीजन है, या फिर हम इसे कहेंगे कि सेल डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन होता है इसे मायोसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो मायोसिस प्रोसेस थ्रू जो 46 क्रोमोसोम्स फीमेल के हैं, 46 क्रोमोसोम्स मेल के हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। किस तरह से डिवाइड होते हैं? तो फीमेल्स के अंदर एक्सेल फॉर्म्स होता है और मेल के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होता है, जिसमें हाफ ऑफ सेल्स बनते हैं, यानी कि एक के अंदर 23, दूसरे के अंदर 23 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और फिर ये 23 क्रोमोसोम्स हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, मेल और फीमेल जब इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें से एक जाइगोट फॉर्म होता है, जो जाइगोट दोनों का 23 + 23 करते हुए 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है। तो ये मेन प्रोसेस होता है। Germ cells have the half the number of the chromosomes and half the amount of DNA due to the meiosis, and when both male and female gametes are fused, there is a re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. This may be similar to their parents or may be combined to the small extent. Male gametes क्या है? So they are the small and motile. There are the smaller
एंड मोटाई बहुत ही छोटे से कद में होते हैं और मोटिलिटी मतलब कि मोबिलिटी जिसके पास है वो एक जगह से दूसरी जगह सिंपली ट्रांसफॉर्म होते हैं थ्रू द स्पर्म्स, दे आर कॉल्ड द स्पर्म्स। तो ये जो मेल गैमेट्स है उसे स्पर्म्स कहा जाता है और ये बहुत ही स्मॉलर इन साइज एंड मोटिलिटी कैरेक्टर्स के साथ होते हैं। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ये लार्ज साइज के होते हैं एंड दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसे एक सेल कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल सी। अब हम चलते हैं इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए और यहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आगे की बात। पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसीलिए हमने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी दी थी। सबसे पहली बात हमें अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। हाउ इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। साथ में हम डिस्कस करेंगे क्या लिमिटेशन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल when new generation are to be created from the single individual without gametes, that is known as the asexual reproduction। इस वीडियो में जैसे हमने आपको आगे भी बताया, when a new generation are to be created, new generation create होती है from a single individual cell, एक single individual parent cell में से without gametes, यहाँ पर कोई gametes फॉर्म नहीं होते हैं, then it is known as the asexual reproduction, whereas the mode of reproduction involving both male and female sexes and to produce the new generation is called the sexual reproduction। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें both the sexes इन्वॉल्व होते हैं मेल एंड फीमेल and to produce a new generation is known as the sexual reproduction। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हिंडर्स डायवर्सिटी। फर्स्ट लिमिटेशन है इस हिंडर्स डायवर्सिटी। यहाँ पर विविधताएं बहुत कम हो जाती है। सेकंड, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, बहुत जल्द ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंक्रीज लीडिंग द इंक्रीज कॉम्पिटिशन। ज्यादा मात्रा में जीव पैदा होने के कारण इन लोगों के बीच में कंपटीशन भी इंक्रीज होती है, स्पर्धा भी बनती है एग्जिस्टेंस को लेकर। इनहेरिटेंस इज पॉसिबल फ्रॉम ओनली सिंगल पेरेंट्स। यहाँ पर जो इन्हें इनहेरिटेंस का लाभ मिलता है, जो अपने पूर्वजों से की परंपराएं मिलती हैं, उसकी जो संस्कृति मिलती है, ये ओनली सिंगल पेरेंट्स को मिलती है। पॉपुलेशन कैन नॉट बी कंट्रोल। यहाँ पर जो पॉपुलेशन फॉर्म होती है इसे कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता है, कैन नॉट बी कंट्रोल एंड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडप्ट इजीली। ये कोई भी बदलाव है इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी तरीके का, तो इसे इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते एंड दे नाइट गेट्स द फिल्ड अप क्विकली, नाइट गेट्स फिल्ड अप वेरी क्विकली। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो आर्टिकल 8.3 को लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने आपसे कुछ बेसिक बातें बताई, डिफरेंसेस बताया असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।